दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज़। इस समय स्काई हॉर्स क्रिकेट एकेडमी कैमरी के अंदर है और यहाँ पे हमारे साथ में कैप्टन विकास हैं जो कि कैमरी गांव के ही हैं और सर्विस से छुट्टी पे आते हैं तो मोटिवेशनल स्पीच घूम के स्कूल में, कॉलेजेस में, एकेडमियों में देते हैं और एक सामाजिक सरोकार भी डिफेंस सर्विस के साथ में ये कर रहे हैं। Yes, that I failed 10 times and I finally cleared it in 11th attempt. So why do you think that I started my speech with some failures? Can anyone answer? Anyone? Please. Give your name, please. My name is Rudransh. My thinking is that you have started your speech from your failures because you want to show that failures will come in life, but at last success is always there. Right. You're right. Failures will definitely come. It will be not like that. You start preparing, you will get it clear in first attempt. That's not always possible. So you have to mentally ready that you will fail sometime. It may happen that you can clear it in first attempt also, but you also have to ready for the contingencies. You have to ready for the failures. Okay. So now, like you all are here, that you want to know how to clear the exam, how to clear the written, how to clear the SSP, and sir is also guiding you very well in that, all those aspects. So how anyone of you has appeared for SSP? Sir, they all are There for ND only, right? ND only. Okay. Anyone appeared for written? Appeared for ND written? Yes, sir. You cleared it? No, sir. Okay. ठीक. So I will briefly tell you about the SSP procedure and how I made it. How like I am also from the same village. I prepared my entire I read in government school here. Then I joined Cosmos Public School from class 3rd to 12th. I studied in Cosmos Public School, Gangwa. Then I did my BTech from Guru Jambheshwar University, and finally in 2021 I cleared my SSP. So the difference, it doesn't make any difference that you are studying in any government school or you are studying in village or you can't speak English. That doesn't make any difference. The difference is that you only have to be focused and you have to move in a particular direction. You should be knowing that you have a particular aim and you have to complete your aim anyhow. You have to leave all the luxuries. You have to stay focused. Each and every activity should be towards your goal only. So I will share my SSB experience and how I prepared for it. So SSB की हम जब भी बात करते हैं, the first thing come into mind is those pictures, TET, VET, SRT. You know about this? You know about TET? What is TET? What is TET? TAT. Thematic Perception Test. ठीक है. तो पहली चीज़ वही दिमाग में आती है कि हम पिक्चर्स कैसे लिखेंगे, हम वेट को कैसे लिखेंगे, हम SRT को कैसे लिखेंगे. What do you think the SSS want to know? वो तुम्हारे बारे में क्या जानना चाहते हैं? Thought process, your psychology सबसे ज़रूरी है इसमें. They want to know how you think about a picture. जब भी तुम्हारे आगे कोई पिक्चर आ गया तुम उसको कैसे देख रहे हो. अब जैसे यही पिक्चर आ गया सेम, this same picture has been flashed to you. What will you write? Somebody standing and speaking something. हाँ, Like same. यही चेंज करना है कि डोंट यूज समबडी, मेक ए हीरो. जैसे मुझे हीरो बना दिया अभी आपने इसमें, अगर मुझे हीरो बना दिया है अभी तो आप उसमें आपको इनोवेटिव आइडियाज़ डालने, खुद के आइडियाज़ डालने. अब यहाँ मैंने स्पीच दे दी है, आपने पिक्चर में लिख दिया है कि कैप्टन विकास फ्रॉम विलेज ही स्टार्टेड मोटिवेटिंग एंड यू जस्ट एंडेड इन लाइक प्लेन स्टोरी. लेकिन इसमें आपको अभी इनोवेटिव आइडियाज़ डालना है कि आपने मुझे सुन लिया है, या फिर अगर मैं हीरो हूँ तो आप मेरी जगह यहाँ खड़े होकर आपने किस तरीके से मोटिवेट किया. इसके बाद अकेडमी में भी गया, दूसरे बच्चों से जाके मिला, इंटरव्यू दिया और बच्चों को, जितने भी गांव में बच्चे थे उनको खुद के पास बुलाया या उनके पास मिले उनसे जाके. और उसके बाद उन्हें जब भी छुट्टी आता था हीरो, मतलब जैसे मैं इस पिक्चर में अगर हीरो हूँ, जब भी छुट्टी आता था मैं उन्हें पढ़ाता था या फिजिकल या साइकोलॉजी की तैयारी करवाता था, SSB की तैयारी करवाता था. वो एक परफेक्ट पिक्चर बनेगी.
अगर आप इसमें हीरो एज ए स्टूडेंट खुद को लेते हैं कि आपने मुझे सुना, आप मोटिवेट हुए, उसके बाद आपने उसके आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे किया, तैयारी कैसे की, तो आपको एक फ़ोटो आपने देख ली, आपने पिक्चर देख ली है, उस पिक्चर को देखने के बाद आप में खुद के आइडियाज़ डालने उसमें कि आगे क्या करेंगे आप, फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या होगी, ना कि आपने फ़ोटो देखा सीधा लिख दिया। वो तो 99% बच्चे वही लिखेंगे। आपको थोड़ा सा उसमें चेंज करना है, खुद के आइडियाज़ डालने हैं और वही वो चेक करना है, खुद के आइडियाज़ वो चेक करते हैं, ना कि आपने देखा जो वही पहला थॉट आपके पास सभी के दिमाग में ये आया होगा कि मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर मैं हीरो तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मोटिवेशन के बाद आपने क्या किया। अगर आप हीरो, आप नीचे बैठ के सुन रहे हैं तो आपने उसके बाद क्या किया। अगर मैं हीरो तो मैंने मोटिवेट कर दिया, मेरा काम यही ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद मैंने क्या किया कि फाइनली कोई 1-2 बच्चे या गांव से जितने भी बच्चे हो सके वो रिकमेंड हो, वो ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा फ़ोटो को देख के फ्रेम को आगे लेके जाना है, मेंटेलिटी को, थिंकिंग एस्पेक्ट को थोड़ा सा वाइडन अप, थोड़ा सा ब्रॉड करना है, वो एक परफेक्ट पिक्चर बनेगी, ठीक है। तो इसके अलावा स्टार्टिंग अब एसएसबी प्रोसीजर में थोड़ा शेयर कर लेता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था या जो आप जो फेस करने वाले हो आगे। आप जैसे पहले दिन जाएंगे आपको प्रोसीजर सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा उसमें टचअप करता रहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करता रहूँगा। आप जैसे पहले दिन जाते हैं एसएसबी में, आपका सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्टिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वो ठीक है, वो तो कागजी कार्रवाई वो हो जाएगी। उसके बाद आपका होता है नहीं, पहले OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। OIR एक रीजनिंग बेस्ड जो रहता है वो काफ़ी सिंपल होता है, वो सभी बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद आता है मेन PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसका क्या मतलब है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन? हाँ, आपने पिक्चर को देख लिया, पिक्चर सभी देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ पिक्चर को नहीं देखना है, क्योंकि वो पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा ब्लर और थोड़ा सा उसमें उनको फिल्टर आउट करना है, तो आपको उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाना होगा, खुद का नॉलेज एक्स्ट्रा दिखाना होगा। वो कैसे दिखाएंगे आप, आपने पिक्चर को देखा है, पिक्चर को सिर्फ पिक्चर को देखना है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, शेड्स कैसा है, मूड क्या है, सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है और उसी बेस पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। आपको 4 मिनट मिलते हैं, उसमें 4 मिनट मिलते हैं, 30 सेकंड मिलते हैं देखने के लिए और 4 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 मिनट उस पिक्चर को कंप्लीट करें, खुद का पूरी स्टोरी है आपको लिख के कंप्लीट करनी है, लेकिन आपको उस स्टोरी को आपने अगर आपने 5 भी लाइनें लिखी हैं, 5 लाइन लिखी है, आप उसको वहीं रख सकते हैं। आपको पेन डाउन बोल दिया, आप रख सकते हैं वहीं। उसके बाद आप उस स्टोरी को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो मैंने भी किया है, सभी करते हैं, वो मैंने भी किया है। उस तरीके से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी नरेशन की बारी आती है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली 1 मिनट जो आप सभी को मिलता है, आप उसको नरेट करेंगे। और नरेशन का आपका इतनी बढ़िया फ्लोलेस नरेशन हो कि आपको जो उसके बीच में, डिस्कशन के बीच में आपने अपना पेपर लिख के सबमिट कर दिया है, उसके बीच में आपको यू गेट अराउंड 30 to 35 और मे बी 1 आवर, इतना टाइम मिल जाता है। उस टाइम में आपको उसको बार बार आप उसको पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, उसकी स्टोरी को और रिफाइन करते रहें। आप उसको एक परफेक्ट पिक्चर जो आपका आपने देखी थी पिक्चर, उससे बिल्कुल रिलेट करके आप बना सकते हैं, खुद के आइडियाज़ उसमें डाल सकते हैं। आपके जो एक्सपीरियंस है या आपने कहीं भी, अब चलो मैं एक बीच में थोड़ा सा पॉइंट है, एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस सिर्फ वो नहीं है जो आपने खुद किया है कुछ काम, वो एक्सपीरियंस नहीं है। आपने कोई भी काम देखा हो, सुना हो, आपके दोस्त ने किया हो, रिश्तेदार ने किया हो, फैमिली मेम्बर्स ने किया हो, या आपने खुद ने किया, वो तो है। उसके अलावा आपने जितना भी काम सुना है, देखा है, वो सब आपका एक्सपीरियंस है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, टीवी में देखा हो, कहीं भी देखा हो, वो सब आपका एक्सपीरियंस है। तो आप वो सब एक्सपीरियंस आपकी फ़ोटो में, वैसे वो TAT हो या फिर PPDT हो, आप सभी में वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। आपका नरेशन की बारी आती है, अब आप नरेशन आपको कॉन्फिडेंटली 1 मिनट में नरेशन करना है। नरेशन कर दिया, इसके बाद आपकी बारी आती है डिस्कशन की। अब डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ आपने उसमें खुद के आपने जो भी खुद के स्टोरी में पॉइंट डाले थे वो आपने कंटिन्यूसली उसमें बोलना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी अच्छी है तो आप पॉइंट दीजिए। अगर आपको लगता है किसी और ने अगर पॉइंट दिया है, उसकी स्टोरी आपसे बढ़िया है, तो उस स्टोरी, उसके पॉइंट आप लेके खुद के पॉइंट ऐड करके वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। इस डिस्कशन का एम क्या है, फाइनल एम क्या है डिस्कशन का? नहीं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक
अलग से टेस्ट होता है लेक्चरेट। ग्रुप डिस्कशन का क्या रीज़न है, क्यों करवा रहे हो ग्रुप डिस्कशन? आपने नरेशन कर दिया, आपके कैसे आप अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अभी एक ग्रुप के अंदर आपको अराउंड 10 कैंडिडेट्स हैं, वो बैठे हैं, 10 कैंडिडेट्स बैठे हैं। अभी हर एक की स्टोरी अलग अलग मिलेगी आपको। किसी ने थोड़ा बाढ़ आया है तो किसी ने कोई बाढ़ दिखा रहा है, कोई बोल रहा है घर का कुछ पानी लीक हो गया है, कहीं कुछ सीवेज प्रॉब्लम बताएगा शहर की। हर एक बंदा अलग अलग बताएगा, लेकिन आपको एक फाइनली 10 बंदों को एक कंसेंसस, एक फाइनल डिसीजन पे आना है। तो फाइनल जो मेन एम है ग्रुप डिस्कशन का कि और जो कॉमन स्टोरी एक लास्ट में नरेट होती है, वो इसीलिए होती है कि 10 के 10 कैंडिडेट्स एक फाइनल स्टोरी पे आएँ और वो एक फाइनल स्टोरी सभी की उसमें हाँ हो कि हाँ ये स्टोरी ठीक है। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है कि सभी की थॉट प्रोसेस, सभी की मेंटेलिटी सेम रहे फिर लास्ट में कि एक फ़ोटो, यही फ़ोटो है और ये पिक्चर। अगर आपको उसमें कुछ डिफरेंसेस लगता है और कि ये नहीं है, किसी ने दूसरा फ़ोटो दिया है, स्टोरी दी है, इसीलिए वो डिस्कशन था कि डिस्कशन में आप सब कुछ सोल्व कर लें, आपकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है और फाइनली एक स्टोरी बनेगी। ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन का मेन मोटिव ये है कि सभी एक स्टोरी पे फाइनली कंक्लूड कर सकें। ठीक है, ये हो गया अभी आपका ग्रुप डिस्कशन और पीपीडीटी पहले दिन। इसमें किसी को कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना हो, क्योंकि मैंने 11 बार दिया है तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैंने और 11 बार में से मैं 8 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ, 8 बार। तो मुझे पता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी हर बार। कैसे जो टीम होती है, जो होता है वो मतलब कैसे मतलब जो सर जो भी स्क्रीन आउट वाला दिन होता है उसमें जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें मतलब टीम जो होती है वो आप खुद चूज़ करते हो या फिर जो आपको खुद मतलब बनती है? नहीं, आपको जो कैंडिडेट्स होंगे, जैसे आप फर्स्ट डे आपने 50 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया है, उसके बाद 5 ग्रुप बना देंगे 10-10 के रैंडमली। वो बनाते हैं, चेस्ट नंबर अलॉट करते हैं, उसके हिसाब से आपको चेस्ट नंबर 1 to 10 पहला ग्रुप, 11 to 20 दूसरा ग्रुप, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप बनेंगे। सर जैसे आप बता रहे हो कि आप 8 टाइम स्क्रीन आउट हुए, तो मतलब आपने मतलब क्या क्या ऐसी गलतियाँ करी है जो हम ना करें आगे? मतलब क्या होती है जो होती है कॉमनली जो मिस्टेक्स होती है? कॉमन मिस्टेक्स ये कि कभी आपने पिक्चर को ठीक से परसीव ही नहीं किया, पिक्चर कुछ और थी, आपने कुछ और लिख दिया। आप पहले से फ़ोटो रट के गए हो कि कुछ भी आए मैं ये लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। या फिर कभी आप डिस्कशन में ज़्यादा बोल रहे हो, दूसरे का किसी ने बता दिया कि डिस्कशन में बोलना ही बोलना है, अपना पॉइंट देना ही देना है, बेशक पॉइंट खुद का गलत हो और फिर भी पॉइंट देना है, वो भी गलत है। दूसरे की सुन भी नहीं रहे हैं या फिर बोल ही नहीं रहे हैं। हर बार अलग अलग गलतियाँ होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को सिर्फ स्टोरी देखना है, किसी का कुछ नहीं सुनना है। जो मेरे को लगता है मेरा जो मेरा आइडिया है, उस मैंने जो पिक्चर को परसीव किया है वो पुटअप करना है। उसके बाद अगर मेरा गलत है, दूसरे का ठीक है, तो मैं उनके पॉइंट्स भी लूँगा। अगर मेरा ठीक है तो मैं बताऊँगा कि इस स्टोरी में हम आपके पॉइंट भी ऐड करते हैं और फाइनली मुझे लगता है कि ये स्टोरी हो सकती है। हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करना, हर बार कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। जैसे मैं बता रहा था कि कभी खुद की स्टोरी चला दी है, कभी दूसरे की सुनी नहीं है, कभी कुछ बोला नहीं है। हर बार अलग, कभी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि पहले बार जाते हैं, पहली बार तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता है, पहले दिन बैठते हैं तो कैसे करना होगा। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। तो लेकिन फाइनली अगर आपका डिस्कशन भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, आपके पॉइंट नहीं सुन रहे हैं लोग, लेकिन अगर आपकी पिक्चर और आपने जो स्टोरी लिखी है और आपने जो नरेशन कर दिया है वो बढ़िया है, जो आप फोटो देखी थी आपने उससे एक्चुअली रिलेट हो रही है, तो आपका 90% काम हो गया। ठीक है, ठीक है। कुछ और, कोई और सवाल? हाँ सर अगर कोई पर्सन वो 4 मिनट 3.5 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाता है तो उसको आउट कर दिया जाएगा या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ अगर उसमें लगभग स्पेस होता है कि आप 15 लाइन लिख सकते हैं एक तरफ, 15 लाइन एक तरफ लिख सकते हैं A4 साइज पेपर के। अगर आपने एक तरफ भी, वैसे दोनों तरफ होता है उसमें लिखने का, अगर आप एक तरफ भी आधा भी लिख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। आपने जब आप नरेट कर रहे हो तो आप उसको कॉन्फिडेंटली पूरा नरेट कर दें। वो जो सर ग्रुप डिस्कशन होती है उसमें एक ही स्टोरी फॉर्म होती है अलग अलग स्टोरीज को लेकर? हाँ, 10 बंदे हैं तो 10 का सभी का सोचने का तरीका अलग है, तो हो सकता है 10 की 10 अलग स्टोरी हो सकता है 3-4 सेम हो, 3-4 अलग हो। कोई और सवाल? हाँ, पूछिए। सर जो हम डिस्क्रिप्शन देंगे पेपर पे, हाँ। जब हमें इंडिविजुअली अपनी स्टोरी को नरेट करना होगा
तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं या फिर जो हमने लिखा है वही बोलना पड़ेगा? नहीं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपको इसलिए तो टाइम मिल रहा है बीच में आधा घंटा या 45 मिनट्स आपको मिल जाता है। आपने जब लिख के पेपर को सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको लगभग आधा घंटा मिल जाता है। तब उस आधे घंटे में आपने जितना लिखते हैं उतना ठीक है, उसके आगे आप खुद का ऐड कर सकते हैं। जो हमारा ग्रुप होगा सर, उनके पास सभी के पास एक तरह की पिक्चर होगी, सभी को अलग अलग? नहीं, पूरे बैच को एक ही फोटो में एक ही पिक्चर दिखाई जाती है। सभी को पहले एक साथ हॉल में बिठाया जाता है, एक पिक्चर दिखाई जाती है, सभी लिख लेते हैं, उसके बाद उनके पेपर्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद हर एक बैच को 10-10 के कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, पहले दिन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अभी अब हम आते हैं दूसरे दिन पे। दूसरा दिन स्टार्ट होने से पहले, उससे पहले क्या होगा, आपसे PIQ फॉर्म भरवाया जाता है। PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। ठीक है, एक पेपर है, वो एक A4 साइज शीट है, दोनों तरफ भरना है। आपने भरा होगा, भरा PIQ फॉर्म। आपकी उसमें पूरी कुंडली रहती है, आपके जन्म से लेके और अभी तक, आज के दिन तक सब कुछ रहता है उसमें PIQ फॉर्म में। ठीक, वो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म रहेगा आपका PIQ फॉर्म। उसको बहुत डेलिब्रेटली सोच समझ के भरना है, कुछ भी झूठ नहीं लिखना। पहली बात, झूठ तो बोलना ही नहीं SSB में। आप जैसे हैं आप उतना बताइए। आपको लगता है कि मेरी ये कमी है, आप कमी बताइए। PIQ फॉर्म में भी झूठ नहीं बोलना है, उसमें पूरा डाटा भर देना है। स्टार्टिंग आपका नेम, फादर्स नेम, पॉपुलेशन, एरिया हेडक्वार्टर, रिलीजन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हॉबीज़, इंटरेस्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज़, चॉइस ऑफ आर्म, ये सब कुछ। ये जो मैंने लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बोले, हॉबी, इंटरेस्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड चॉइस ऑफ आर्म, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन्हीं पे आएंगे। ठीक है, PIQ फॉर्म जब इंटरव्यू होगा उस टाइम मैं बताऊंगा और थोड़ा। अभी दूसरे दिन आपका क्या क्या टेस्ट स्टार्ट होगा। दूसरा दिन टेट, वेट, SRT और SD, जिसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। टेट, वेट, SRT और SD। टेट थीमेटिक है परसेप्शन टेस्ट, सेम वही आपको 11 फ़ोटोज़, एक ब्लैंक, 12 दिखाई जाएंगी। ठीक है, ये इस टाइम फ़ोटोज़ थोड़ी सी क्लियर रहती है, पहले दिन जितना ब्लर नहीं रहती, थोड़ी क्लियर रहती है। ठीक है, अभी आप मेरे को बताइए कि आप TAT को कैसे लिखते हैं, क्या सोच के, किस तरीके से आप एक पिक्चर को फ्रेम करते हैं। कोई एक कैंडिडेट बताइए, कोई भी एक। आपको एक पिक्चर दिखा दी गई है, आप सोचते किस तरीके से हैं कि मैं उसको स्टार्ट कैसे करूं लिखना। कोई भी एक बताइए, कुछ भी बताइए आप। आप टेट की प्रैक्टिस किया आपने, आप देखा है टेट पढ़ा है? नहीं किया अभी तक? किया है? चलो बताओ फिर कैसे करते हैं। सर पिक्चर में एक पर्टिकुलर हीरो को लेते हैं सर। हाँ, मोस्टली मेल्स को लेते हैं, और जो हीरो लेते हैं वो लगभग अपनी एज का लेते हैं पिक्चर के हिसाब से। और फिर उसके अंदर एक मोटिव ढूंढते हैं कि इसका मेन एम क्या है इस पिक्चर में। फिर उसको हासिल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि उसने कैसे इसको हासिल किया, और उसके बाद में हैप्पी एंडिंग। चलो ठीक है, ओके, ठीक है चलो। आपको कोई भी फोटो दिखाई जाती है, कोई भी पिक्चर दिखाई जाती है, उस पिक्चर में जो हीरो है उसका क्या रहता है, एक एम रहता है, उसको कहीं ना कहीं पहुंचना है। ये नहीं है कि अभी जैसे सेम यही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर मोटिवेट कर रहा हूँ तो मेरा फाइनल एम क्या है, आपको मोटिवेट करना क्या नहीं है। फाइनल एम वो नहीं है मोटिवेट करना, फाइनल एम है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ और बच्चे इसमें रिकमेंड हो, मतलब मेरी स्पीच से या फिर आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से 2-4 बच्चे या जितने आप सभी रिकमेंड हो। फाइनल नेम वो है। उस रिकमेंडेशन के लिए फिर क्या क्या किया गया, वो उसमें क्या आए हैं, चैलेंजेस आए हैं। आपको एक फ़ोटो दिखाई गई, उसका एम होगा, उस एम को अचीव करने के लिए चैलेंजेस। आपने फ़ोटो देख लिया, अब आप ये सोचना स्टार्ट करिए कि इस एम तक पहुंचने के लिए मेरे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। उन चैलेंजेस को फिर नेगेट करने के लिए, हटाने के लिए, पूरा करने के लिए आप स्टेप्स लेंगे, अलग अलग स्टेप्स लेंगे। आपने क्या क्या स्टेप्स लिए वो आप TAT में लिखिए, तभी आपकी वो एक परफेक्ट पिक्चर बनेगी। और आप वो तभी लिख पाएंगे अगर आप वो खुद आपने किया हो, या आपका एक्सपीरियंस हो, जैसे मैंने बताया एक्सपीरियंस हो आपका, आपने पढ़ा हो, देखा हो, आपको वो लिखना है। ना कि आपने एक फ़ोटो देखा प्लेन पिक्चर पे हीरो और इसका ये एम है और उसने फाइनली हैप्पी एंडिंग करके ये ख़त्म कर दिया, ये नहीं करना है। आपने एक एम लिया,
उस एम तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चैलेंजेस वर्ड। आपको क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, आप उन चैलेंजेस को कैसे आपने पूरा किया है, वो स्टेप्स ज़रूरी हैं। वो स्टेप्स आपको लिख के और आपने फाइनली अपना एम कैसे अचीव किया, ये करना है आपको। ठीक है, तो हर एक फ़ोटो को आप देखिए, उसका एम ढूंढिए और उसमें चैलेंजेस निकाल के उसके स्टेप्स लिखिए। अभी मैं इस TAT की मैंने कैसे प्रिपरेशन की वो आपको बताता हूँ। मैं हर टाइम मेरे पॉकेट में एक A4 साइज शीट और एक पेन रखता था। मुझे कहीं भी कुछ भी, क्योंकि स्टोरीज है वो रैंडम रहती है, आपको कहीं भी कोई भी पिक्चर दिखा सकते हैं। वो ये फिक्स नहीं है कि यही फ़ोटो हर बार आएगी या फिर जो गूगल पे अवेलेबल है वो आएगी, कुछ भी आ सकता है। तो मैं पेन पेपर रखता था, मेरे सामने कुछ भी, जैसे कुछ भी काम चल रहा है, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर यहाँ कैमरामैन खड़े हैं, मैं ऐसे सोचता रहता था कि अगर ये फ़ोटो है तो मैं इस पर इनका एम क्या हो सकता है। अगर वो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उनका एम क्या हो सकता है, वहाँ पे जो उसका मालिक है उसका क्या एम हो सकता है, और उसके क्या क्या उसको चैलेंजेस आ रहे हैं इस काम को पूरा करने के लिए, वो उसको कैसे पूरा करेगा। मैं सोचता रहता था, फिर मैं उसको एक लाइन में लिख देता था कि एम ये है, ये 2-4 चैलेंजेस आ रहे हैं, ये वो स्टेप ले सकता है, और ये इसका एक स्टोरी बन गई है मेरी। ठीक, इस तरीके से मैं 24 घंटे में पढ़ता था या फिर कॉलेज आते जाते व्हीकल पे सब कुछ यही सोचता रहता था और उनको लिखता रहता। जब मेरे को टाइम मिला मैंने एक लाइन में लिख दिया। तो मेरे खुद के लगभग 200 से 250 स्टोरीज मेरे खुद के दिमाग में पहले ऑलरेडी थी कि यार कुछ ऐसा हो तो ये इस तरीके से बना सकते हैं इसको, कुछ ऐसा है तो इस तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया। तो मेरे पास मेरी खुद की ओरिजिनल स्टोरी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मेरे पास 250 से 300 स्टोरीज मेरी खुद की थी। तो मेरे को कुछ रटने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर धीरे धीरे आपको आदत लग जाती है चीज़ें सोचने की, आपको हैबिट डालना है, आपको आदत में डाल लेना है कि आपने कोई भी कुछ भी देखा, आपने उसी तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ अब ये काम कर रहा है, इसका ये हो सकता है और इसको ये चैलेंज आ रहे होंगे। अभी आप सुबह सुबह यहाँ आए, आप क्यों आए हैं, आपका क्या एम था, खेलना एम था। ठीक है, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है, स्टार्टिंग आपने वहाँ से स्टार्ट किया, सुबह आपको उठना भी है, व्हीकल अवेलेबिलिटी देखनी है, यहाँ के ग्राउंड की अवेलेबिलिटी देखनी है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ स्टाफ भी देखना है कि स्पोर्टिंग स्टाफ कितना है, खाने का भी देखना है, राशन पानी का देखना है, एडम का देखना है। ये आपके सब कुछ चैलेंजेस थे। आपने उन चैलेंज को कैसे कैसे कंप्लीट किया। ठीक है, और आपका फाइनली एम अचीव हो गया, आपने एक बढ़िया डे स्पेंड किया और ये आपका बेसिकली आपका एक पिकनिक टाइप हो गया। ठीक है, तो ये तो मतलब काफ़ी बेसिक स्टोरी हो गई है। इस तरीके से आपको 24 घंटे सोचते रहना है कि कुछ ऐसा आएगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा आएगा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, और आपको इसको हैबिट में डाल लेना है। इस तरीके से ये मेरा तरीका था, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कुछ और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं मेरा बता रहा हूँ, आपको लगता है कि आपका तरीका या बेहतर हो सकता है या आपका सोचने का तरीका अलग, सभी का अलग होता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट ध्यान वही रखना है कि एक एम रखना है, उस एम तक पहुँचने के लिए आपके चैलेंजेस आपको देखने हैं और उनको नेगेट करते रहना है। ठीक है, अगला टेस्ट रहता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या रहता है उसमें, आपको वर्ड दिखाए जाते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो वर्ड दिया गया है आप उसी वर्ड पे सेंटेंस लिखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वर्ड को आप एसोसिएट किस तरीके से करते हैं, उस वर्ड को उस वर्ड को आपने देख लिया, वो वर्ड आपको देखते ही या पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या है, आपको वो थोड़ा लिखना है। हम क्या करते हैं, उस वर्ड को देखा, हम उसी वर्ड के पीछे लगे रहते हैं। ये जो गेम है तो मैं गेम पे ही कुछ सेंटेंस बनाऊँ, ज़रूरी नहीं है। आपको गेम देखते ही फिजिकल फिटनेस याद आता है, इन्जॉयमेंट याद आता है, फ्रेंड्स याद आते हैं, कोई वर्ल्ड कप याद आता है कभी। ठीक है, इस तरीके आपको उसके साथ वर्ड्स को एसोसिएट करना है, और आपको सिर्फ उस वर्ड गेम को सेंटेंस में इंक्लूड करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली एसेसर क्या देखना चाहता है कि हमने आपको कुछ भी वर्ड दे दिया या कोई भी सेंटेंस दे दिया, आपका दिमाग उसको देखते ही कैसे चल रहा है वो देखना है, ना कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर आप लिख किस तरीके से, वो ज़रूरी नहीं है। आपने वर्ड देखा, आपका दिमाग कहाँ गया, आपको दिमाग को पढ़ना उनको। ठीक है, अगला टेस्ट क्या है, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, अभी SRT में आपको अराउंड 60 दिए जाते हैं, 60 SRT दी जाती है, हर एक के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलता है। आपको कोई भी सिचुएशन दे दी है, हम क्या करते हैं, सिचुएशन देखिए, उस पर सीधा अपना रिएक्शन लिख दिया। लेकिन आपको लिखने के लिए आपको 15 सेकंड बहुत है। आपको पहली 15 सेकंड में क्या करना है, 30 सेकंड मिलता है एक SRT के लिए, आपको पहली 15 सेकंड में उसको पढ़ना है और एनालाइज करना है कि इस सिचुएशन को मैं कैसे डील करूंगा, और डील करने के लिए
सिर्फ ये नहीं है कि आप इमीडिएटली आपने जो दिमाग में आया वो रिएक्शन डाल दिया। आप सोचिए कि और क्या क्या मैं मेजर्स ले सकता हूँ, किसी की हेल्प ले सकता हूँ, या फिर सिचुएशन पूछी किस तरीके से गई है और आप उसको जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। आपको 15 सेकंड में सोचना है, समझना है, और आपके पास क्या क्या और रिसोर्सेज हैं, क्या क्या मेजर्स और हैं जिससे आप इस सिचुएशन को और अच्छे से डील कर सकते हैं। और वो कब आपका डेवलप होगा, जब हर एक चीज़ को आप अपने अराउंड ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ हो गया, कुछ हज़ार्ड हो गया है, फायर हो गया है, तो यहाँ फायर ये एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, पाइप अवेलेबल है, साइड में काम चल रहा है, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते रहना है। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे हर एक चीज़ों को चलते फिरते, आपके दिमाग में उतने नए आइडियाज़ आएंगे। और एसएसबी क्या ढूंढता है, आपके आइडियाज़ ढूंढता है। अभी हर कोई रटी रटाई चीज़ें लिखेगा तो पढ़ते ही आपने मेरे को एसआरटी लिख के दी, अगर आपने रटी रटाई चीज़ें लिख दी तो मेरे को पता है मेरे पास डेली मैं 100 पेपर चेक कर रहा हूँ, मेरे को पता है ये रटी रटाई चीज़ है, पढ़ूंगा भी नहीं मैं ठीक से। अगर आपने एक खुद का अलग सा आइडिया दे दिया, हर एक चीज़ में आपके टीएटी में एक अलग, मेरे को आपकी मेंटेलिटी एक अलग आइडिया दिखा, एसआरटी में अलग दिखा, वर्ड एसोसिएशन जैसे मैंने बताया, आपके वर्ड मेरे को सबसे अलग लिखे कि हाँ यार इसके वर्ड कुछ अलग है, इसने कुछ दिमाग लगा के लिखा है, कुछ ना कुछ इसने अलग सोचा है, तो डेफिनेटली मेरा ध्यान जाएगा आपके पेपर पे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कीन टू ऑब्जर्व, मतलब हर एक चीज़ को देख के, समझ के और 2 बार सोच के उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, अगला टेस्ट क्या है, एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसमें क्या क्या 5 चीज़ें पूछी जाती है, पता है आपको? एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? हाँ, खुद को डिस्क्राइब करना है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। और आप उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। ये 5 चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, कैसे पता लगाओगे आप? कैसे पता लगाओगे? किससे? उनसे खुद से। आप अपने पेरेंट्स के साथ डेली मिलते हो, फ्रेंड्स से डेली मिलते हो, टीचर से डेली मिलते हो, आपको 90% आपको आइडिया है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सभी को आइडिया है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा, आप उनसे पूछ सकते हैं। और पूछना रिकमेंड करते हैं कि आप, मैंने भी पढ़ा है या कहीं या फिर यूट्यूब पे देखा है कि आप उनसे डायरेक्ट पूछ लीजिए कि आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप खुद निकालें, खुद सोचें, खुद निकालें कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो तो आपका वही ओरिजिनल रहेगा, वो आपका तरीका। बाकी मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किया है उनको, पहले दिन नहीं लिख दिया, मैंने खुद उनको ऑब्जर्व किया है। 6 महीने 1 साल मैंने ऑब्जर्व किया है सभी को कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, फिर मैंने वो लिखा है। तो आप खुद ऑब्जर्व करिए उनको कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे होंगे। अगर आपने कभी कुछ गलत काम कर दिया तब वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब कभी आपने कुछ बहुत अच्छा कर दिया, आप क्लास में फर्स्ट आए हैं या फिर गेम्स में आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ परफॉर्मेंस किया है, तब वो आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं। और नॉर्मल कंडीशन में जब सब अच्छा चल रहा है तब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हर एक कंडीशन में आप उनको ऑब्जर्व करिए, फिर अपना रिएक्शन लिखिए। ठीक है, और एसडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पीआईक्यू, मैं मानता हूँ पीआईक्यू फॉर्म और एसडी ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पीआईक्यू फॉर्म में कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं और एसडी में आपने जो लिखा है आप वैसे ही हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी हम आते हैं तीसरे दिन पे। तीसरा दिन क्या है, जीटीओ और उसके साथ साथ इंटरव्यू। पहले इंटरव्यू डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू कितने मिनट का चलता है? इंटरव्यू कितने मिनट तक चलता है? 40 to 45। ठीक है, अब आप जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या जानना चाह रहा है? आपको अपने बारे में कितना पता है। ठीक है, इंटरव्यू जानना चाह रहा है कि आपने जो पीआईक्यू फॉर्म, एसडी, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, इनमें जो सब कुछ लिख के दिया है वो आपके पीआईक्यू से और आपकी पर्सनैलिटी से,
आप जिस तरीके से उसको बोल के बता रहे हैं वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ अगर आप सच बोल रहे हैं वो खुद आपके आ जाएगी। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप बेशक कितना ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, कितना ही कॉन्फिडेंस हो, आप पकड़े जाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी सच्चाई, जो आप अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में दिया है और जो PIQ में दिया है, क्या आप वो दोनों चीज़ों को रिलेट करके इंटरव्यूअर को बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो। अगर आप वहाँ सच नहीं बोल रहे हो, आपने साइकोलॉजी टेस्ट में कुछ और लिख दिया है रट के, PIQ फॉर्म में कुछ और डाला है और आपने इंटरव्यू में कुछ और ही बता दिया है, तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। क्योंकि क्या चाहिए SSB में? एक परफेक्ट बैलेंस। हर एक तीनों टेस्ट में एक बैलेंस चाहिएगा। अभी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा, ठीक है, आपने फैमिली के बारे में पूछेगा, फ्रेंड्स के बारे में पूछेगा, उनकी आपकी खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता करेगा। आपसे वो ये भी पूछेगा कि आपका वो बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड क्यों है, उसकी 2 क्वालिटीज़ बताइए, खुद की क्वालिटीज़ बताइए, पेरेंट्स की 2 क्वालिटीज़ बताइए, गुड बैड, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे, कैसे आप इसका आंसर करेंगे? ये सब कुछ चीज़ें आप उसी समय तो नहीं याद कर सकते। उस समय तो आप बैठ के नहीं सोच सकते कि मेरे पेरेंट्स की क्या क्वालिटीज़ है, मेरे फ्रेंड्स की क्या क्वालिटीज़ है। तो कैसे करेंगे आप इन सब चीज़ों को? देखो, इंटरव्यू जो भी रहता है, एक PIQ फॉर्म के बेस पे रहता है, वो PIQ फॉर्म पे रहता है पूरा। तो उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? एक PIQ फॉर्म से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 150, 200, 300, 400, कितने? 400। जितना आप सोच सकते हो, जितना आप सोच सकते हो उतने क्वेश्चन बन सकते हैं। 250, 300, 400। अभी आपको क्या करना है? पूरे टाइम जब भी आप फ्री हो, चल रहे हो, खा रहे हो, दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, आपको क्या याद रखना है कि यार वो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है। अगर मैं ये जवाब देता हूँ तो मुझे अगला क्वेश्चन ये आ सकता है। अगर मैं फ्रेंड्स के बारे में ये बताता हूँ तो मुझे वो ये पूछ सकता है। आपको खुद से सोचना है, हर एक क्वेश्चन पहले जनरेट कर लेना है खुद का, खुद ही पता लगा लेना है कि यार मैंने ये बोल दिया तो अगर मेरे से ये पूछेगा फिर मैं ये बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ। आपको खुद के क्वेश्चंस डेवलप करने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा, आपको कुछ नया नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि आपने पहले ही आपको सब कुछ पता है, कि आपने तैयारी इस तरीके से की है। आपने पहले ही सारे क्वेश्चन खुद के रेडी कर लिए हैं और उनका जवाब भी रेडी कर लिया है। जवाब इन द सेंस जो सच है, जो जवाब है। आपने कोई भी मेकअप नहीं किया है, कुछ भी झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं जवाब बनाया है। आपको वही जवाब बनाने हैं जो आपकी सच्चाई है, जो आपने TAT, WAT, SRT, SD साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो बताया है वही आपके जवाब हैं, वही आपको इंटरव्यू में भी बताना है। मैंने इसकी तैयारी इस तरीके से की कि मैंने सभी जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे खुद के दिमाग में, मेरे दिमाग में जो भी आ रहे थे कि इंटरव्यू मेरे से ये पूछ सकता है, इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं, मेरे से ये पता लगा सकते हैं, तो मैंने खुद ही पहले रेडी कर लिया था सब कुछ। और SRT, SD जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो मेरी सच्चाई है वो मैंने इंटरव्यू में भी बताई, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी बताई। ठीक है। अगला दिन GTO क्या फुल फॉर्म है? ग्रुप टास्क ऑब्स्टेकल, मैं भी भूल रहा हूँ अभी। ठीक है। GTO में क्या देख रहे हैं वो? हाँ ठीक है, टीम स्पिरिट। और GTO के जितने भी टास्क हैं वो आपके इंडिविजुअल टास्क नहीं है, वो एक ग्रुप के टास्क हैं। आपकी एक ग्रुप की नफरी, आपकी स्ट्रेंथ 10 है, 10 लोग हैं, आप 10 लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है। बेशक आप सभी एक साथ मिलके वो फट्टे वाला क्या बोल दो, मैं भूल रहा हूँ अभी, थोड़ा ना टाइम हो गया थोड़ा। फट्टे वाला वो क्या टास्क होता है, वो आपको वो मिल रहा है, आपको ग्रुप डिस्कशन मिल रहा है। आपको जितने भी टास्क दिए जा रहे हैं आपको एक ग्रुप में दिए जा रहे हैं सारे टास्क, तो आप उस ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके साथ जितने भी बंदे हैं आप क्या उनको साथ लेके चल रहे हैं? क्या आपका पूरा ग्रुप आपको सुन रहा है? क्या वो दूसरे जो लोग बोल रहे हैं क्या आप खुद उसको सुन रहे हो? खुद की तो नहीं चला रहे हैं। पूरे ग्रुप को एक साथ लेके पूरा टास्क आपको कंप्लीट करना है। इसी आपकी ग्रुप में टेस्टिंग इसीलिए की जा रही है कि आप क्या ग्रुप के साथ कंपेटेबल हो, क्या आप उस ग्रुप में फिट हो रहे हैं।
क्या आप सभी एक फ्रेम पे, एक स्टेट ऑफ माइंड पे आ पा रहे हैं? तो ग्रुप टास्क आप जितना ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी करेंगे, ग्रुप में आप अभी खेल रहे हैं वो भी ठीक है, डिस्कशन है, आप जितना ग्रुप के साथ करेंगे आपका ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। क्या है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या करना है? क्या होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज? आपको कोई भी एक स्टोरी दी जाएगी, एक नैरेटिव दिया जाएगा। नैरेटिव में लिखा होगा कि यहाँ इतना किलोमीटर दूर पे एक एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे किसी के घर चोरी हुई है, कहीं आग लगी है, ये सब कुछ आपको दिया जाता है। आपने शायद ये नहीं किया है अभी तक ना? नहीं किया। चलो ठीक है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना GTO तक हो गया पूरा। इसके बाद एक फाइनल कॉन्फ्रेंस में आपने जितना भी परफॉर्म किया है, आपका हर एक टास्क, हर एक एक्टिविटी में जैसी परफॉर्मेंस रही है, वहाँ ऑफिसर्स बैठ के उसको डिस्कस करेंगे और फाइनली आपकी एक कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें आपको बुलाया जाएगा और कुछ रैंडम 2-3 सवाल पूछ लिए जाएंगे और फाइनल आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो ये तो था पूरा आपका SSB का प्रोसीजर। पूरे SSB प्रोसीजर में आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपका डाउट हो कि मेरे को इस चीज़ में थोड़ा सा ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये थोड़ा टफ है, कुछ है ऐसा? नहीं है। अब देखो SSB में जो मैंने जितना भी प्रोसेस बताया पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैं पूरे SSB में इम्पोर्टेंट क्या है? नहीं, मैं कोई पार्टिकुलर टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके खुद की एबिलिटी की, खुद की जो क्वालिटीज़ हैं। देखो सबसे ज़रूरी है आज के टाइम पे इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ नया डालना है। हर एक पिक्चर में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ नया डालना है। खुद के दिमाग को खोल के कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ें डालनी है। और वो कब आएंगी? जब आप कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे। ना कि आपको जैसे मैंने बताया कि आपको एक पिक्चर दे दी गई, आपने उसमें प्लेन कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको सोचना है, कुछ नए आइडियाज़ डालने हैं। अगर आप नए आइडियाज़ डालेंगे तभी आपके जो असेसर है उसको देखेगा, असेस करेगा ढंग से। और हर एक टाइम आपको सोचते रहना है, नई चीज़ें सोचते रहना है। कोई भी चैलेंज आया उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, और खुद के आइडियाज़ अगर उसने डाल दिए आपने तो वो बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी और कोई किसी का सवाल फिजिकल से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, हाँ? तो आप सभी अभी आप +1 के हैं? +1 +2 ड्रॉप। आप भी +1 +2? अच्छा ठीक है। अभी वुमेन ऑफिसर्स के लिए, वुमेन कैडेट्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप एंट्री पता है आपको? सारी एंट्री पता है? अभी NDA जैसे ओपन हो गया वुमेन्स के लिए, NDA के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ ठीक है। वुमेन ऑफिसर्स के लिए पहला है NDA। आप +2 के बाद अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स है तो आप NDA में जा सकते हैं। अगर NDA आपका नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आपने कोई भी डिग्री हो आपके पास, BA, BSc, BCom, कोई भी डिग्री हो, BTech, आप CDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। और आपने CDS के लिए अप्लाई किया, सेम वही प्रोसीजर रहता है, UPSC कंडक्ट करेगा। उसके बाद इंटरव्यू, मेडिकल, फिर 1 साल की ट्रेनिंग। कहाँ होगी ट्रेनिंग आपकी? आर्मी के लिए होती है चेन्नई, नेवी के लिए INA इजिमला केरला में, और एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद, ठीक है। तो वुमेन ऑफिसर्स के लिए हो गया। इसके अलावा आप FCAT के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, FCAT, एंड दूसरा क्या है INET, इंडियन नेवी एडमिशन टेस्ट, उसके लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी वुमेन ऑफिसर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। और मेरे साथ खुद वुमेन ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग की है, मैं OTA चेन्नई से पास आउट हूँ, वुमेन ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग की है। तो मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है कि दे आर इक्वली कम्पिटेंट एंड इन सम एस्पेक्ट्स दे आर फार बेटर देन मेल ऑफिसर्स। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग इतनी ही टफ है ट्रेनिंग, बट वुमेन ऑफिसर्स भी करती हैं। उन्होंने मेरे साथ खुद 21 किलो वेट उठा के 40 किलोमीटर दौड़ा भी है,
कैंप भी किया है, 5-5 दिन बाहर रहे हैं कैंप में बिना राशन पानी के, सब कुछ। ठीक है, तो अभी विमेन ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और मैं आर्मी से, मैं इन्फेंट्री से हूँ, तो इन्फेंट्री में विमेन ऑफिसर्स अलाउड नहीं है बाकी, लेकिन दूसरी आर्म्स में जैसे सिग्नल्स है, इंजीनियर्स है, EME है, उन सभी में विमेन ऑफिसर्स काफ़ी अच्छे कर रही हैं अभी। ठीक है, आप में किसी ने डिसाइड किया है कि मेरे को अगर मैं क्लियर होता है तो मेरा मैं ये आर्म लूँगा, आर्मी में जाऊँगा, नेवी में जाऊँगा, एयरफोर्स में जाऊँगा, कुछ ऐसा, पैरा ज्वाइन करूँगा? तो बताओ यार जोश के साथ क्या डिसाइड कर रखा है, सर को भी कंफर्म है। किस किस का पैरा ऑप्टिकॉन है? ठीक है, और इन्फेंट्री ऑप्टिकॉन है? इन्फेंट्री किसने सेलेक्ट किया है? नहीं किया है, बाकी क्या है? सिग्नल्स, आर्मर्ड, RT, EME, ASC। ठीक है, सभी आर्म्स बढ़िया है, आप जिसमें भी जाना चाहें सभी बढ़िया है, लेकिन हर क्या रहता है, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। अब जैसे उनका पैरा एसएफ में इंटरेस्ट है, बढ़िया पैरा एसएफ। आप अगर आप फिजिकली टफ है, मेंटली टफ है, तो पैरा एसएफ बढ़िया है। अगर आपको इन्फेंट्री भी इक्वली, अगर आप फिजिकली, मेंटली और आपको आउटडोर पसंद है, बंदों के साथ रहना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, एडवेंचर पसंद है, तो इन्फेंट्री बेस्ट है। वो आपके इंटरेस्ट पे है, लेकिन सभी आम बढ़िया है। इक्वली आप इक्वली कंट्री को आप सर्व कर रहे हैं, एंड सब बढ़िया है, ऑल फैसिलिटीज सब बराबर है। लेकिन आपका जो काम करने का तरीका होगा, जो जिस टेरेन में आप काम कर रहे होंगे, वो सभी का अलग अलग रहेगा फिर। ठीक है, और किसी का कोई भी सवाल, कुछ भी आपको पूछना हो? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।